وہ بہت بے چینی سے بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے پر سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس اور پریشان۔ سمارٹ ٹی وی کی اسکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہے تھے۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں موبائل کمپنی کے لوگوں کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پاز کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دروازے میں فاطمہ بیگم آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلوایا تھا آپ کو؟ وہ بے چینی سے ان کے قریب آئی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ آئے تھے اس روز، وہ نڈھال سی کہتی صوفے پر بیٹھی۔ ہاں کیا ہوا انہیں؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے نزدیک بیٹھی۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ بھی پہلے مانگ چکے تھے، پھر بھی۔ اور حیا کا دل بہت اندر تک ڈوب کر ابھرا۔ کیوں کیا ہے انکار؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ حیران سی رہ گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فقرہ سماعت میں گونجا۔ جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت تو بگاڑنی نہیں، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ یہ جملے جو سائمہ تائی کے منہ سے اس نے چند روز قبل سنے تھے، اس کے کان میں گونجنے لگے۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھروں پر بھی وہی انگلیاں اٹھتی ہیں؟ اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی۔ خیر، ارم کو کون سی کمی ہے رشتوں کی؟ فاطمہ بیگم اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئیں، اور وہ صوفے پر گری سی رہ گئی۔ ٹی وی اسکرین پر وہ اشتہار ابھی تک رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے PTA۔ اب شاید ارم کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا بھی تو یہی ہوگا جو اس دفعہ ہوا تھا۔ اور ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا نا کہ بات کو دبا جائے۔ کسی نے منہ پر ساری بات کر دی تو وہ کدھر جائیں گی؟ حیا سوچ میں گم تھی اور اسکرین پر نظریں جمائے دل ہی دل میں پڑھ رہی تھی کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے PTA۔ وہ بے خیالی سے اسے تکتی، سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے PTA۔ بجلی کا ایک کوندہ سا اس کے ذہن میں لپکا تھا۔ اوہ خدایا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی۔ ارم، بات سنو میری۔ جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھولنے پر گڑبڑا کر موبائل سائڈ پر رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، وہ تبھی رشتے والی بات یاد آ گئی اسے۔ اوہ آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا تمہیں۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا، خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی، مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم میری بات سنو، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں پڑھی ہے۔ تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سم رجسٹر کروانا ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ ارم بولی۔ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کرے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات میں ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنے میں۔ یہ سب سائبر کرائمز کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، اور ہر سائبر کرائم پاکستانی نیشنل کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے۔
साइबर क्राइम है और हम इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इरम फौरन चिल्लाई। अगर किसी को पता चल गया ऐसे तो? पता तो तब चलेगा ना जब हम इस वीडियो को वहीं रहने देंगे। 4 दिन से मैं सूली पर लटकी हूँ, अब इस मसले को खत्म हो जाना चाहिए। मगर हम किसको रिपोर्ट करेंगे? वो नीम रजामंद हुई तो हया ने झट मोबाइल उठाया। पीटीए को। और किसको? दरवाजा बंद करो, मैं अपना कनेक्शन की हेल्पलाइन से पीटीए का नंबर लेती हूँ। इरम दौड़कर दरवाजा बंद कर आई और हया नंबर मिलाने लगी। पीटीए की हेल्पलाइन का नंबर आसानी से मिल गया, मगर ऑपरेटर ने निहायत शाइस्तगी से ये कहकर माजरत कर ली कि इस किस्म का साइबर क्राइम किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करना होगा। हया ने उससे मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी सिविलियन एजेंसी साइबर क्राइम का ईमेल एड्रेस ले तो लिया, मगर अब वो कुछ परेशान सी बैठी थी। ये इंटेलिजेंस वाले खतरनाक लोग होते हैं हिरम, मगर अब ये करना तो है, और वाकई करना तो था। इरम ने लैपटॉप खोला और फिर बहुत बहसों मुबाहिसे के बाद उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी और उस पते पर भेज दी जो पीटीए से उनको मिला था। बामुश्किल 10 मिनट ही गुजरे थे कि हया का मोबाइल बजा। उसने मोबाइल उठाकर देखा, चमकती स्क्रीन पर अंग्रेजी में प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। साथ कोई नंबर वगैरह नहीं था। उसके मोबाइल पर नाम और नंबर दोनों आते थे और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कोई नंबर प्राइवेट नंबर के नाम से महफूज किया हो। और अजीब बात तो ये थी कि नंबर तो सिरे से ही आ नहीं रहा था। ये कौन हो सकता है? उसने अचंभे से फोन कान से लगाया। हेलो। दूसरी जानिब जरा देर खामोशी के बाद एक भारी गंभीर आवाज सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान। जी, आप कौन? मैं मेजर अहमद बात कर रहा हूँ साइबर क्राइम सेल से। आपने हमारी एजेंसी में रिपोर्ट की है, हमें अभी आपकी कंप्लेंट मौसूल हुई। वो जो भी था बहुत खूबसूरत बोलता था, गहरा, गंभीर मगर नरम लहजा जिसमें जरा सी चाशनी भरी थी, गरम और सर्द इम्तिजाज। मगर मेजर अहमद, मैंने कंप्लेंट में अपना नंबर तो नहीं लिखा था, वो धक धक करते दिल के साथ कह रही थी। इरम भी हैरत भरे खौफ से उसको देख रही थी। जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नंबर तो बहुत आम सी चीज है मिस सुलेमान, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या? हया हैरान हुई। यही कि आप सुलेमान असगर की बेटी हैं, आपके वालिद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपका भाई रोहेल जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी में जेर तालीम है, खुद आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ की 5वें साल में हैं। फरवरी में आपने एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस्तांबुल जाना है, गालिबन सबांजी यूनिवर्सिटी में। और पिछले हफ्ते अपने कजन दावर फुरकान की मेहंदी के फंक्शन पर बनने वाली वीडियो की इंटरनेट पर अपलोडिंग को आपने रिपोर्ट किया है। इज दैट राइट मैम? वो जो दम बखूद सी सुनती जा रही थी बामुश्किल बोल पाई। जी वही वीडियो। अब आप क्या चाहती हैं मैम? यही कि आप इसे इस वेबसाइट से हटा दें। उसकी आवाज में बहुत मिन्नत भरी थी। ओके, और कुछ? और जिन जिन लोगों के पास इसकी सीडी है वो भी। आगे उसका गला रुंध सा गया। एहसाने तौहीन से कुछ बोला भी नहीं गया। मैं शहर के एक एक बंदे से वो वीडियो निकलवा लूंगा, आप बेफिक्र रहें। और उसे लगा मनो बोझ उसके ऊपर से उतर गया हो। थैंक यू मेजर अहमद। उसके अंदाज से जाहिर था कि वो फोन रखने ही वाली है कि वो कह उठा, थैंक यू तो आप तब कहें जब मैं ये काम कर दूं, और इस काम को महज शुरू करने के लिए भी मुझे आपका ताउन चाहिए। कैसा ताउन? मादम के आपको ये जरा सी तकलीफ करनी पड़ेगी, आपको इस वीडियो की बाकायदा रिपोर्ट करने के लिए मेरे ऑफिस आना होगा। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आ सकती। वो परेशानी से हकला गई। इरम भी फिक्रमंदी से उसका चेहरा देखने लगी। फिर तो ये काम नहीं हो पाएगा, ऐसे स्टेप्स फोन पर नहीं लिए जाते। उसे लगा वो महजूज सा मुस्कुरा रहा था। मगर मैं नहीं आ सकती। और वो कैसे आ सकती थी? किसी को पता चल जाता तो कितनी बदनामी होती। आपको आना पड़ेगा, मैं गाड़ी भेज दूंगा। नहीं, अच्छा खुदा हाफिज, उसने जल्दी से कहकर फोन बंद कर दिया। बाहर में गया ये और इसका साइबर क्राइम सेल।
اگر ابا یا تایا فرقان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر گئے تھے تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے۔ یہ خیال پھر پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی تک اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پر تھکا دینے والا سفر۔ وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ 14 جنوری کو ہی پاسپورٹ مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ رہ گیا تھا۔ کوئی تکنیکی مسئلہ تھا شاید، جس کے باعث اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکا ہوا تھا۔ تبھی اسے پنڈی میں اپلائی کرنا پڑا۔ واپسی پر بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پر آئی تو مغرب چھا رہی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روئی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں ہی الجھا ہوا تھا۔ اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی۔ ابھی ٹکٹس نہیں آئی تھی، مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فروری کے آغاز میں اسے ٹرکی جانا ہے، یعنی کم و بیش 15 دن اس کو ویزا ملتے ہی لگتے، اور ٹرکی کا ویزا تو کبھی 15 دن میں نہیں لگ پاتا۔ پھر وہ انہی سوچوں میں الجھی تھی کہ یکایک کوئی اس کی کھڑکی پر جھکا۔ سوہنیوں، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھا، ڈولی، چمچم کرتے ہرے لباس میں ملبوس، وگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ۔ ناگواری کی ایک لہر سی اس کے چہرے پر سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈولی نے اس پر کوئی احسان بھی کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا ہی نہیں کر سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ تو غصہ ہی ہو رہی ہو۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پر نہیں تھے، بلکہ اس کے میک اپ سے اٹے چہرے پر سادگی و معصومیت تھی، کراہیت بھری سادگی اور معصومیت۔ ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کچھ غلط حرکت کر ڈالے۔ ہائے باجی، ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور وہ آپ کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی۔ اس نے آواز پر گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پر ایک اور خواجہ سرا ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا۔ چہرے پر البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا، مگر شوخ سرخ رنگ کی قمیض کے آستینوں سے جھلکتے بازوں پر شاید وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کے چوکھاٹ میں دیے جھکا کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ تنہا تھی اور ٹریفک بلاک، سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا جی اسے آپ سے ملنے کا، ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی آپ سے ہمیں۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر لیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آ گئی۔ حیا نے دیکھا پنکی کی کلائی پر ایک گلابی سرخ سا 1 انچ کا کانٹا بنا ہوا تھا، جیسے کہ جلا ہوا ہو یا شاید برتھ مارک تھا۔ ہٹو، آئی سے گیٹ لاس۔ وہ عالم تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور شیشہ اوپر ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی ایسے تو نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی۔ ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا تو وہ غصے میں گھومی اور زور سے ڈولی کو دھکا دیا۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہ تھا، سو لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے چند سیکنڈ مل گئے تھے۔ اس نے جلدی جلدی اپنی طرف کا شیشہ چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بازو بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، مگر وہ اڑ ہی گیا تھا۔
बाजी जी, मैं तो तुहानू डोली के दिल की बात बताने आया था और तुसा इस तरह कर रहे हो। ये जो डोली है ना, बड़ा पसंद करती है जी आपको, मगर इकरार नहीं कर पाती। पिंकी मसनूई अंदाज में बन बन कर बोल रहा था। पीछे डोली बंद शीशा बजाने लगा था। शट अप एंड गेट लॉस्ट। वो पूरी कुव्वत से शीशा ऊंचा करने लगी। पिंकी की उंगलियां जो शीशे के किनारे से टिकी थीं, साथ साथ ऊपर उठने लगी। बाजी जी, गल तो सुनो। डोली घूमकर पिंकी के साथ आकर खड़ा हो गया। इसी असना में इशारा खुल गया। गाड़ियां आगे बढ़ने लगी। हया की गाड़ी रुकी खड़ी थी। पीछे से गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे, मगर दूर खड़ा पुलिसमैन खामोशी से तमाशा देखता रहा, मदद के लिए आगे न बढ़ा। डोली ने पिंकी के कंधे पर हाथ मारकर चलने का इशारा किया। पिंकी ने लम्हा भर को गर्दन मोड़कर डोली को देखा तो उसकी गिरफ्त शीशे पर जरा ढीली हुई। हया ने आलम तैश में फौरन शीशा ऊपर चढ़ा दिया। पिंकी ने चौंक कर देखा, फिर उंगलियां खींचनी चाही, मगर वो मुस्तकिल मिजाजी से शीशा ऊपर कस रही थी। पिंकी की उंगलियां फंस कर रह गईं। ओह छोड़ो बाजी जी। पिंकी झुंझला कर हाथ खींच रहा था, मगर उंगलियां निकल कर ही नहीं दे रही थी। डोली ने गुस्से से शीशा बजाया, मगर हया तनफ्फुर से उन दोनों को देखते हुए बाजू लंबा किए शीशा आखिरी हद तक ले गई। पीछे में गाड़ियों की कतार हॉर्न पर हॉर्न दे रही थी। कुछ गाड़ियां साथ से निकलने लगी। फिर पिंकी के दाएं हाथ की उंगली से खून की बूंद टिपककर शीशे पर लुढ़कती गई तो उसे जैसे होश आ गया। एक झटके से उसने लीवर नीचे किया। शीशा 1 इंच नीचे गिरा। पिंकी ने गुस्से से उसे घूरते हुए हाथ बाहर खींचा। गाड़ी आगे भगाने से कबल उसने बहुत गौर से पिंकी के हाथ को देखा था। दाएं हाथ जिसकी कलाई पर कांटे का जला हुआ निशान था, उसी हाथ की शहादत की उंगली से खून निकल रहा था और बाकी दोनों हाथ की उंगलियों के ऊपर पोरों की कुदरती लकीर पर मोटी सी भूरी लकीर बन गई थी। यकीनन उसके हाथ जख्मी हुए थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो जन से गाड़ी आगे ले गई। फिर उसने बैक व्यू मिरर से देखा। वो दोनों ख्वाजा सरा बार बार मुड़ मुड़ कर उसे गुस्से से देखते सड़क पार कर रहे थे। डोली ने पिंकी का जख्मी हाथ थाम रखा था और गुस्से से पलटकर हया की दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कह रहा था। उसने सर झटक कर एक्सेलरेटर पर जोर बढ़ा दिया। कम से कम इतनी उम्मीद उसे जरूर थी कि अब वो डोली उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा और बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। हया, जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, लाउंज में बैठे सुलेमान साहब तेजी से उसकी तरफ बढ़े। उनके चेहरे पर गैज़ो गज़ब छाया हुआ था। वो डर कर पीछे हटी। तभी पीछे कहीं फोन की घंटी बजी। वो वीडियो तुम्हारी है? तुम मुजरे करती हो? रोहेल जो सोफे पर बैठा था एकदम उठा और बहुत सी सीडीज उसकी तरफ उछाली। वहाँ सब मौजूद थे, ताया, फुरकान, दावर भाई, रोहेल, सब। और एक तरफ इरम जमीन पर बैठी रो रही थी। दूर कहीं फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। वो सर हिलाते हुए खौफ से उनको कहना चाहती थी। उसका मुंह तो हिलता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो सब उसका खून लेने पर तुले हुए थे। सुलेमान साहब आगे बढ़े और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। बेहया, उसे थप्पड़ों से मारते हुए सुलेमान साहब कह रहे थे। लब तो सुलेमान साहब के हिल रहे थे, मगर आवाज डोली की निकल रही थी। वो सुलेमान साहब नहीं, डोली बोल रही थी। डोली, पिंकी, बेहया, पिंकी की उंगलियां, फोन की घंटी। वो एक झटके से उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन किया। जर्द सी रोशनी हर सू फैल गई। उसने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा छुआ। वो ठीक थी, सब ठीक था। किसी को कुछ भी इल्म नहीं हुआ था। वो सब एक भयानक ख्वाब था। ओह खुदाया! वो नढाल सी बैकग्राउंड के साथ पीछे जा लगी। उसका तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था। दिल वैसे ही धड़क रहा था। पूरा जिस्म पसीने में भीग गया था। फोन की मखसूस टून इसी तरह बज रही थी। हाँ, बस वो घंटी ख्वाब नहीं थी। उसने साइड टेबल से फोन उठाया और चमकती स्क्रीन को देखा। प्राइवेट नंबर कॉलिंग शो हो रहा था। चंद लम्हे लगे थे उसे एक फैसले पर पहुंचने में और फिर उसने फोन कान से लगा लिया। मेजर अहमद, मैं आपके ऑफिस आकर रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर की बैक साइड पर मौजूद ग्राउंड के एंट्रेंस गेट पर गाड़ी भेज दें, सुबह 9 बजे। श्योर, उसे फातिहाना लहजा सुनाई दिया।
उसने आहिस्ता से फोन बंद कर दिया। कभी भी वो किसी लड़के से यूं तन्हा नहीं मिली थी, मगर ना मिलने की सूरत में वो वीडियो कभी ना कभी लीक हो जाती तो ज्यादा बुरा होता। उसने बेइंतहा झुरझुरी सी ली। उस खौफनाक ख्वाब ने उसे ये करने पर मजबूर कर दिया था। उसे लगा अब उसके पास और कोई चारा नहीं रहा मेजर अहमद तो उससे वो निपट लेगी। प्ले ग्राउंड के गेट के साथ तूत का तनावर दरख्त था। वो उससे टेक लगाए मुंतजिर खड़ी थी। सुर्ख लंबी ए लाइन कमीज और नीचे चूड़ीदार पजामा, ऊपर स्टाइलिश सा सुर्ख स्वेटर जिसके ऊपर आस्तीनें हथेलियों को ढांप कर उंगलियों तक आती थीं, और कंधों पर ब्राउन छोटी सी शॉल। लंबे बाल पीछे कमर पर सीधे गिरे थे। सर्दी और धुंध में वो मुस्तरिब सी खड़ी, सुर्ख पड़ती नाक लिए दोनों हाथों को आपस में रगड़ रही थी। इरम या जारा उसने किसी को भी नहीं बताया था। ये खतरा उसको अकेले ही मोल लेना था। उसने बेचैनी से कलाई से स्वेटर की आस्तीनें पीछे हटाई और घड़ी देखी। 9 बजने में 1 मिनट था। उसी पल जन से एक कार उसके सामने आकर रुकी। सियाह पुरानी मर्सिडीज और किसी बुत की तरह सीधा सामने बैठा हुआ ड्राइवर। वो खामोशी से सर झुकाए आगे बढ़ी और पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसके दरवाजा बंद करते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे भगा दी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो सेफ हाउस पहुंच गई थी। सफेद दीवारों वाला खाली कमरा, दरमियान में लकड़ी की मेज और कुर्सी जिस पर उसे बैठा दिया गया। मेज पर फकत एक टेलीफोन ही रखा था, बाकी पूरा कमरा खाली था। वो मुस्तरिब सी गर्दन इधर उधर घुमाकर देखने लगी। 3 तरफ सफेद दीवारें थीं। उनमें से एक दीवार में वो दरवाजा था जहां से वो आई थी। अलबत्ता चौथी सिमत में उसके बमुकाबिल दीवार शीशे की बनी हुई थी। दरअसल वो शीशे की स्क्रीन थी जो जमीन से लेकर छत तक फैली हुई थी। शायद वो छोटा खाली कमरा किसी बड़े कमरे का हिस्सा था जिसमें शीशे की स्क्रीन लगाकर पार्टीशन कर दिया गया था। उसने जरा गौर से स्क्रीन को देखा। उसका शीशा मुकम्मल तौर पर धुंधला कर दिया गया था, जैसे मशीन फेरकर फ्रॉस्टेड कर दिया गया हो। उस धुंधले शीशे के उस पार एक धुंधला सा मंजर था। हर शय इतनी मबहम और धुंधली थी कि वो बमुश्किल एक खाका पा रही थी। यकीनन वो शीशा एक कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए दरमियान में लगा दिया गया था और उसके पार कमरे का बाकी हिस्सा था। बस एक धुंधला सा खाका ही समझ में आता था। शीशे के उस पार कोई बड़ा सा ऑफिस था और ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर कोई बैठा था। उसका रुख हया की जानिब ही था। उसका चेहरा वाज़ेह ना था, बस एक धुंधली सी आउटलाइन ही बनती थी। खाकी यूनिफॉर्म, सर पर कैप, टेक लगाकर कुर्सी पर बैठा, मेज पर रखी कोई चीज उंगलियों में घुमाता। वो किस तरफ देख रहा था वो फैसला ना कर पाई। उसका रुख तो सामने हया की जानिब ही था और शायद देख भी उसी को ही रहा था, मगर उसकी आंखें वाज़ेह ना थी। वाज़ेह थी तो बस एक चीज, उस ऑफिसर के गंदमी चेहरे के दाएं तरफ वाले आधे हिस्से पर एक बदनुमा सी कालक, जैसे आधा चेहरा झुलस गया हो। वो शख्स आगे को झुका और मेज से कुछ उठाकर कान से लगाया, गालिबन फोन का रिसीवर। यकदम हया के सामने मेज पर रखा फोन बजने लगा। वो चौंकी। फोन मुसलसल बज रहा था। क्या वो शख्स उसे कॉल कर रहा था? उसने धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान, दिस इज मेजर अहमद। वही नरम गरम सा खूबसूरत लहजा। वालेकुम सलाम। वो फोन हाथ में पकड़कर कान पर रखे यकटक सामने स्क्रीन पर देख रही थी, जिसके पार आधे झुलसे चेहरे वाला ऑफिसर फोन थामे बैठा था। क्या वही मेजर अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ हमने आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दी। मेजर अहमद की आवाज आई। जी। उसको घुटन महसूस होने लगी। मेरे सामने लैपटॉप पर तमाम सिस्टम खुला हुआ है। मुझे एक क्लिक करना है और आपकी वीडियो सफाए हस्ती से यूं मिट जाएगी जैसे कभी बनी ही नहीं थी। दीवार के पार उस धुंधले मंजर में बैठे उस ऑफिसर के सामने भी एक लैपटॉप खुला पड़ा था, तो वो मेजर अहमद था। मगर सामने क्यों नहीं आता? वो सोच रही थी।
और शहर के एक एक बंदे से मैं ये वीडियो निकलवा चुका हूँ। बोलिए हया, मैं क्लिक कर दूं और वो रिपोर्ट? हया बोली। समझे वो दर्ज हो गई। उसे लगा वो मुस्कुरा रहा है। मगर आपने कहा था मुझे रिपोर्ट के लिए। जी गलत कहा था, एक्सक्यूज बनाया था। बाज़ औक़ात बहाने बनाने पड़ते हैं जब मजीद सब्र नहीं होता, समझें। फोन को जकड़कर उसका हाथ पसीने में भीग चुका था। ये शख्स इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है? आप क्लिक कर दें प्लीज, बमुश्किल वो कह पाई। वो शख्स झुका, शायद बटन दबाने, और फिर पीछे होकर बैठ गया। कर दिया, वो बोला। ओके थैंक यू मेजर अहमद। उसका गला रंधने सा लगा। एक बात पूछूं? जी। क्या ये वीडियो नकली थी? नहीं थी तो असली। तो आप इतनी डर क्यों रही थी? जाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों पर डांसेस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो पे दर पे सवाल कर रहा था। क्या मतलब क्यों? शादियों की वीडियोस सर्कुलेट होती रहती हैं। क्या अच्छा लगता है कि हमारी डांस की वीडियो पराए लोग देखें? मगर पराए लोग लाइव तो देख सकते हैं। गालिबन इस वीडियो में मुझे वेटर्स, मूवी मेकर और डीजे नजर आ रहे हैं। वो भी तो पराए मर्द है ना। मैं समझ नहीं पाया कि आप इस तरह रक्स करने को सही समझती हैं तो वीडियो के बाहर निकलने पर परेशान क्यों थी? चाहे मूवी मेकर, वेटर, डीजे देखें या इंटरनेट पर मौजूद मर्द, बात तो एक ही है। और अगर आप इस बात को गलत समझती हैं तो आपने ये किया ही क्यों? मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूं, वो बोली तो चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। ठीक कहा आपने। खैर, उसने एक गहरी सांस ली। एक बात पूछूं? जी पूछिए। अब के उसकी आवाज में अजनबियत थी। कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नतें कहाँ देखी हैं मेजर अहमद? उसके चेहरे पर तलखी थी। तभी तो हम दुनिया वाले जानते ही नहीं कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी कोई आपको ला दे तो इन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। उसके चेहरे पर तलखी ढलती गई। वो ठहर सी गई। धुंधली दीवार अभी तक उसके सामने थी। कौन था उस पार? आप सुन रही हैं? जी सुन रही हूँ। वो चौंक कर संभली। मैं चलती हूँ। वो रिसीवर कान से हटाने ही लगी थी कि वो कह उठा, एक मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जी पूछिए। आप मुझसे शादी करेंगी? उसे जोरदार धचका लगा। वो फटी फटी निगाहों से धुंधली दीवार को देखने लगी। बताइए मिस हया। उसके लब भेंच गए। हैरत और शौक पर गुस्सा गालिब आ गया। मिस हया नहीं, मिसिस हया। वो चबा चबा कर एक एक लफ्ज बोली। वो पर्स थामकर उठी। फोन का रिसीवर अभी तक पकड़ रखा था। क्या मतलब? वो वाज़े चौंका था। अफसोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन के निकाह के बारे में लाइल्म हैं। वो निकाह जो मेरे कजन जहान सिकंदर से मेरा बचपन में ही पढ़ा दिया गया था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर टर्की में रहता है। ओह, आपकी वो रिश्तेदार फैमिली जो कभी पाकिस्तान नहीं आई। जानता हूँ। आपकी फूफो का खानदान जो जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी इधर का रुख नहीं करेंगे। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक सरंजाम दिया था। आप उनका इंतजार कर रही हैं क्या? अरे बचपन का निकाह तो कोर्ट की एक ही पेशी में खत्म हो जाता है। शट अप, जस्ट शट अप मेजर अहमद, वो चिल्लाई। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की? अरे भाड़ में जाएं आप और आपकी वो वीडियो। आप भले उसे टीवी पर चलवा दें, मुझे परवाह नहीं। मेरा एक काम करने की इतनी बड़ी कीमत वसूलना चाहते हैं आप? रहा जहान सिकंदर तो वो मेरा शौहर है और मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता, समझे आप? रिसीवर वापस पटकने से कबल उसने दूसरी जानिब से उसका सोगवारियत भरा कहका सुना था। पैर पटक कर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। इसी पल दरवाजा खोलकर एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ जो उसे अंदर बिठाकर गया था।
गोया उसे फौरन इशारा कर दिया गया था कि मुलाकात खत्म हो गई है और हया के लिए वो बेहद तल्ख साबित हुई। गाड़ी आपका इंतजार कर रही है मैम, आइए। वो रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया। हया ने गर्दन मोड़ कर देखा। धुंध के उस पार वो आधे सियाह चेहरे वाला शख्स मेज पर झुका कुछ कर रहा था, शायद कुछ लिख रहा था। उसे लगा उसने उसकी मेज पर किसी सुर्ख शय की झलक देखी है, शायद सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते की, या शायद उसका वहम था। जिस लम्हे वो उस पुरानी मर्सिडीज की पिछली नशिस्त पर बैठी तो खुले दरवाजे से उसी सिपाही ने झुककर एक सुर्ख गुलाबों का बुके उसे थमाया। गो के उसके साथ कोई खत ना था और वो फूल उन सफेद गुलाबों से कतन मुख्तलिफ थे। फिर भी उसे यकीन हो गया था कि वो गुमनाम खतूत भेजने वाला मेजर अहमद ही था और वो उसे बहुत पहले से जानता था। ये जाकर अपने मेजर अहमद के मुंह पर दे मारो। उसने बुके वापस सिपाही के बाजू में फेंका और दरवाजा खटाक से बंद कर दिया और फिर मर्सिडीज जन से आगे बढ़ गई। हया हया, शाम में इरम भागती हुई आई। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। पता है वो वीडियो उस वेबसाइट से रिमूव हो गई है। उसने फर्ते जज्बात से तकरीबन बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी हया को झंझोड़ ही दिया था। मगर कैसे हुआ ये सब? इरम बोली, उस वेबसाइट वाले को खौफे खुदा आ गया होगा, मुझे क्या पता। वो लापरवाही से अनजान बन गई। शायद, मगर अच्छा ही हुआ। ओ हाँ, तुम्हारी टर्की की फ्लाइट कब है? पता नहीं, पहले पासपोर्ट तो मिले, फिर ही वीजा मिलेगा। उसको इरम की मौजूदगी से कोफ्त होने लगी। कुछ उसके तासरात से ही जाहिर था। इरम जल्द ही उठकर चली गई। वो फिर से अपनी सोचों में उलझ गई। मेजर अहमद, उसका आधा झुलसा हुआ चेहरा, सामने ना आना, पर्दे के पीछे से बात करना और वो उसके अजीब फलसफियाना बातें, जन्नत वगैरह का तज़किरा, बास पुरस करना और फिर शादी का सवाल। ओह खुदाया, कैसा अजीब आदमी था वो। और उसकी एक बात जिसके बारे में वो इस वक्त शदीद आलम तैश में होने के बाइस सवाल नहीं कर सकी थी। आपकी फुप्पो का खानदान जो जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी इधर का रुख ही नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक सरंजाम दिया था। क्यों कही थी उसने ये बात? कैसी जिल्लत और शर्मिंदगी और कैसा शर्मनाक कारनामा? फुप्पो का खानदान वाकया तन पलट कर नहीं आया था, तो क्या उसकी वजह उनके अपने मुल्क और खानदान से बेजारी नहीं थी जैसे कि वो कयास करती थी, बल्कि कोई और ही वजह थी उसकी, कोई जिल्लत आमेज कारनामा जो उन्होंने सरंजाम दिया था। और उन्होंने किसने? फुप्पो ने, उनके शौहर ने या जहान सिकंदर ने? क्या गुत्थी थी भला? मगर मेजर अहमद से वो इस्तफसार नहीं कर सकती थी और ना ही उसका दोबारा फोन आया था। और वो खतूत, वो गुलदस्ते, वो भी उसी ने भेजे थे क्या? उसे उसकी ज़बानजी जाने का इल्म कैसे हुआ? यकीनन वो उसकी कॉल टैप कर रहा था जब वो ज़ारा को बता रही थी, और वो उस वक्त यकीनन उसके घर के बाहर ही होगा। मगर वो गुलदस्ता तो किचन की टेबल पर रखा था, तो क्या वो उनके घर भी दाखिल हो सकता था और उसके कमरे में भी? खौफ की एक लहर ने उसे अपने हसार में ले लिया। वो उठकर कमरे का दरवाजा लॉक करने ही लगी थी कि फातिमा बेगम दरवाजा खोलकर अंदर आई। हया, तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। ओके, मैं आ रही हूँ। उसने तकिए पर रखा हुआ दुपट्टा उठाकर गले में डाला, स्लीपर्स पहने और बाहर आ गई। अब्बा, उसने उंगली की पुश्त से उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। आजो हया। उसने दरवाजा धकेला तो वो खुलता चला गया। सामने बेड पर सुलेमान साहब बैठे थे, सोच में डूबे हुए मुतफक्कर अंदाज में उसके मुंतजिर थे। साथ एक तरफ सोफे पर फातिमा बेगम मौजूद थी। उनकी खूबसूरत आंखें सोगवार थी और बावकार सरापे पर अफसुर्दगी छाई थी। आपने बुलाया था अब्बा? हाँ, आओ बैठो। वो खामोशी से सर झुकाए चलती हुई आई और बेड की पायंती पर टिक गई। सुलेमान साहब चंद लम्हे खामोश रहे। शायद वो कोई तमहीद सोच रहे थे, मगर हया को उम्मीद थी कि वो बिना तमहीद के ही सीधी बात कर डालेंगे। मैंने एक फैसला किया है। उसने गर्दन उठाई। वो बहुत संजीदा दिखाई दे रहे थे।
अब तुम्हें कोर्ट के जरिए सबीन के बेटे से खुला ले लेनी चाहिए। कोई उसके मुंह पर चाबुक दे मारता तब भी शायद उसे इतना दर्द ना होता जितना अब हुआ था। मैंने वकील से बात कर ली है, अदालत की एक ही पेशी में अलहदगी हो जाएगी और जितने बेजार वो लोग हमसे हैं यकीनन उन्हें इस बात से बहुत खुशी होगी। उसने शौकी निगाहों से माँ को देखा तो उन्होंने बेबसी से शाने उचकाए। तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं और इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। उनके रवैये से साफ जाहिर होता है कि वो इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहते। अब्बा, क्या ये वाहिद हल है? बहुत देर बाद वो बोली तो उसकी आवाज में टूटे ख्वाबों का दुख था। क्या इसके अलावा भी कोई हल है? हया, दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता और मैं कभी तुम्हें ये ना कहता, लेकिन किस कीमत पर, आखिर किस कीमत पर हम ये रिश्ता निभाएं जब वो कोई उम्मीद ही नहीं दिलाते? अगर आपको वाकई लगता है कि आप मेरा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं तो मुझे टर्की जाने दें। वहां मैं उसको जरूर ढूंढूंगी और पूछूंगी कि अगर वो घर बनाना चाहता है तो ठीक है, वरना मुझे तलाक दे दे। अगर नहीं देता तो मैं वहीं कोर्ट चली जाऊंगी, मगर मुझे एक आखिरी कोशिश कर लेने दें अब्बा, प्लीज। वो खामोश हो गए, शायद कायल हो गए थे। अब्बा, आप मुझे 5 माह का वक्त दें। अगर इसके आखिर में आपको लगे कि मुझे खुला ले लेनी चाहिए तो मैं आपके फैसले पर आपके साथ हूँ। वो उठी और फिर बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई।